हेलो, आप लोगों جی को सिर्फ इस्लाम के हेलो ऊपर क्यों ऐतराज है? کیونکہ ہم مسلمان تھے اور اسلام ارے کو ہم نے بھائی تھوک کے باہر نکلے ہیں اس لیے. हाँ, ارے رک جاؤ تو بھائی، تو ایک दूसरे بات تو दूसरे ہم سے ہماری سن لو. ارے جی سن آپ لو بھی سنا بھائی، دیں سر، آپ بھی سنا बोलो دیں، बोलो آپ بھی बोलो 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 आज इन लोगों को ارے ایک पकड़ بات लो, ہماری سن لو. इन लोगوں को سن छोड़ना मत आज. ہاں ہاں हाँ, چھوڑنے کے نہیں، چھوڑنا نہیں ہمیں. एकदम بولو بولو. ٹھیک ہے. ارے स्क्रीन بھائی छोटा ارے कर بھائی लो. اس سے हाँ, مطلب نہیں ہے، چھوڑا بھائی جس کی مرضی. دیکھو میں بتاتا ہوں. اچھا میرے کو ایک بات سمجھاؤ، آپ لوگ کے انسٹاگرام پہ بہت سے چینل ہے ایسے ایسے بات کرنے والے، بہت سے ایسے چینل ہے جن کی گھر کی روزی روٹی اسی سے چلتی ہے، اور ٹھیک ہے، تو آپ تمہاری بھی انسٹاگرام پہ اسی نہیں ہو سے نا، ابھی چل رہی ہے. یوٹیوب پہ ہو نا؟ یوٹیوب پہ ہو ارے نا؟ ہاں میں یوٹیوب پہ ہی ہوں، یوٹیوب پہ ہاں ہی ہوں. بولو. ہمارا اپنے مدعے پہ بات کرو، کہ کرنی ہے، نہیں کرنی تو چھوڑ ہاں دو، مدے چلے جاؤ. مدے پہ مطلب آپ پہلے مسلم تو آپ دونوں ہاں ابن ہاں اور یہ دونوں آپ لوگ مسلم تھے ہاں پہلے، ہاں یہ ہاں بتاؤ ہم کو. بالکل بالکل مسلم تھے. انہوں نے یہ دھرم چھوڑ دیا، اسلام دھرم. چھوڑ دیا. ہاں ابھی کس دھرم میں کنورٹ ہوئے آپ لوگ؟ ہم کسی اس دھرم سے میں کیا کنورٹ فرق نہیں ہوئے، اور پڑتا ہے؟ بتاؤ. یہ तो مطلب फिर ایک फायदा क्या وہ है? ہوتا ہے نا. دیکھو سنو مطلب آپ کسی میں دھرم میں، اسے تو مطلب اچھا نہیں ہے، چھوڑو. اسلام میں یہ بھی شبیر نہیں کرتا ہے بھائی جو جس کا من شہباز وہ کرے. شہباز دیکھو شہباز شہباز ہاں ہاں بھائی. جی جی بھائی. مجھے بتاؤ، مرتد کی جی جی. سزا کیا ہے اسلام میں؟ ارے وہ بات میں نہیں کرنے آیا، میں تو پہلی بار آیا یہاں پہ. میں بول رہا نا ہم ایک بندہ، میں نے میں کہا بتا رہا پہلی ہوں بار آیا، سنو. میں نے آپ سے ایک پوچھا بندہ ہے اس. رکو شہباز، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے، یہ بتا دو. مردے کی مرتد کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ مرتد مطلب مرتد کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا اس کو. بابا جی جی قسم. نہیں. एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम. جس نے اسلام ارے چھوڑ سن، دیا، ایک مسلم مرتد ہو نہیں گیا، اس کی نہیں سزا نہیں کیا ہے؟ نہیں ایک مسلم نہیں. میں یہاں پہ کچھ اپنی سوال بول رہا، بس اس کی جواب دے دو، میں یہاں سے بول چلا دینا، جاؤں پہلے گا. مجھے بتاؤ مرتد کی سزا کیا ہے. مرتد کی تم ہی بتا دو. نہیں آپ بتاؤ گے نا، اسلامک نالج آپ لے نہیں کے آئے نہیں ہو، میں تم لے ہی کے آیا ہوں. بتا دو بھائی، تمہارے پاس تو اتنے لمبے لمبے لسٹ ہیں اس کی، ایسے ایسے فیک چلو نیوز بنا اب رکھی آپ ہیں. ایسا تم ہی کریں بتاؤ. تو ادھر میوٹ ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کو امب کا پتہ نہیں، میں کسی پڑھے لکھے بندے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی. نہیں دوسرا ہمارے ساتھ ارے گاڑی میری والا تو بندہ کچھ بھاگ گیا. سوال بھاگ گیا گاڑی والا والا میں بندہ. خود پہ خود چلا جاؤں گا. گاڑی والا بندہ بھاگ میرے کو گیا، تو ٹھیک ہے. لڑائی تھوڑے نا ہے آپ لوگوں سے، میں تو خود پہ خود چلا جاؤں گا. ارے بھائی آپ یہاں پہ آئے ہو، آپ نے پہلی جو بات رکھی تھی وہ چینلز کی بات رکھی تھی. میں نے آپ کو کہا مرتد کی سزا کیا ہے، جا کے پڑھ لو. جب پڑھ کے آ جاؤ گے ارے بتا دو گے، اس کے مرتد بعد کی اپنے سزا سوال رکھتا نہیں. ہوں. دیکھو نہیں ہے بھائی، تم ریفرنس. لوگوں نے ایسے چینل کھول رکھا ہے نا، کیونکہ روزی روٹی تمہاری اسی سے ریفرنس چلتی ہے، اور بھائی اسلام پوری مرتد کی. دنیا میں. ہاں کیونکہ ٹھیک ہے تمہارا شہباز سنو. دیکھو آپ کے رسگلہ نے پیسے بھیک کی طرح مانگے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے، بھکاری بن کے مانگے ہیں اور لوٹ مار کے مانگے ہیں. آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جس کا سورت ہے جس کا نام ہے لوٹ سورہ مار کا مال. سورہ لوٹ مار کا مال، ٹھیک ہے. پھر آپ کے نبی نے کہا ہے کہ لوٹ مار کے مال میں 20% میرا ہے. پھر آپ کے نبی نے کہا جس نے مجھ سے پرائیویٹ کنسلٹیشن کرنی ہے وہ صدقہ ہاں خیرات ہاں لے ہاں. کے آئے، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ کہانیاں نہ سناؤ. اگر آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے تو پہلے پتہ کر لو پھر آ جانا. ابھی آپ سے ایک سوال کیا ہے صرف، اور آپ بھاگ گئے. آپ نے پہلے سوال کا جواب مانگا، میں نے دے دیا. اب میرا سوال ہے، اس کا جواب آپ دے دیں، پھر آگے چل جائیے گا. لاسٹ چانس ہے آپ کو، ورنہ پھر دوسرے بھائیوں سے بات کرتے ہیں. اچھا یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ 20% ہمارے نبی نے مانگا ہے؟ سر قرآن پاک کی آیت ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے ایک دفعہ بھی؟ ارے یہ جی کولا پڑھا ہے ہے میں نے. بھائی، یہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا آیت ہے. نمبر بھی شہباز بتا دیں. دیکھو پہلے تو آپ لوگ ڈر رہے ہو، ایک تو سوال سے ڈر رہے ہو. دیکھو میں پڑھوں یا نہ پڑھوں اس سے تو مطلب نہیں. ایک تو آپ لوگ ایکس مسلم بیٹھے ہو سر کیونکہ آپ کی آپ نے گھر کی لوٹ روزی مار، روٹی، سنو نا، آپ نے گھر کی لوٹ روزی مار روٹی کا، آپ لوگ کی یار اسی سے صبر، اوے چلتی روزی ہے. روٹی کے کچھ لگتے. لوٹ مار کے مال کی نہیں صورت پڑی ہے؟ کھوتی کے بچے، لوٹ مار کے مال کی صورت پڑی ہے ایک دفعہ بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ؟ بھائی تو ہم کو بتا دینا کہاں لکھا ہے سورہ نمبر. یہ لوٹ سورہ مار نمبر کا تو آپ مال بتا دیں. ہے، سورہ کا نام ہے لوٹ لوٹ مار مار کا کا مال مال. وہی چوری ڈکیٹی کا مال وہی نہ ہوتا ہے ہاں بھائی. لوٹ مار کا مال، یہ لے. اور جان لو کہ جو بھی تمہیں لوٹ مار میں سے حاصل ہو، اس کا 5واں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. دیٹ 5واں حصہ ہوتا ہے 20%. ہاں یہ سچ میں قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں سر، یہ میں آپ نے کے ابھی سامنے ہے کتاب بھائی. لکھی ہے، اس میں لکھا ہے. نہیں نہیں سنو نا، نا ایسے ایسے جو اپنے سے قرآن کو الگ بتا کے اور وہ جو لانچ کر رہے ہیں نا، ویسے بھائی تم ہی ہو ارے تیرے سامنے بھائی نا بھائی قسم آیا. سے.
तुम देखो तुम्हारी घर की रोजी रोटी ना इसी से चलती है और कुछ नहीं है। यार तुम लोग को गेम तो चेंज हो गई साहिल, क्यों इतना तकलीफ हो रही है? साहिल गेम ही चेंज हो गई। यानी एक हाँ। बंदा आया साहिल जो रोजी रोटी के ऊपर गेम डालने की कोशिश कर रहा है, उसका नबी लूट मार के माल पे पल रहा है साला, और कहते हैं कुरान तुम लोगों ने लिखा है, कुरान.com हमने लिखा है। अरे सुन शहबाज, ये लूट मार के माल की आयत नंबर 41 है, ठीक है? लूट मार के माल की सूरत है, आयत नंबर है 41। दुनिया का कोई सा भी कुरान खोल के मेरे पास ले आ, तेरे पास है, जा शहबाज लेके आता है। हाँ हाँ, ये तो बार बार हटा क्यों दे रहे अपना हो, कुरान बोलने तो दो। अपना कुरान खोल। मैं अभी छत पे घर बैठा पे हूँ। है कुरान? तुम्हारी घर पे है है ना? कुरान? नहीं, मैं घर पे सब लोग, हाँ है, ओके अल्हम्दुलिल्लाह लेके घर आ, पे कुरान मजीद लेके आ, है। लेके आ, मैं छत पे बैठा हूँ भाई, सब लोग घर में हाँ तो है। ठीक है, मैं लेके छत पे आ बस ना, तुम्हारे लिए आया। क्यों लेके आऊं? ताकि तुझे मैं तो यकीन हो कि ये कुरान में लिखा हुआ है। भाई तुम्हारे वजह से ना एक एक ऐसे बंदे भड़े पड़े हैं ना इंस्टा पे, जो अपनी माँ चुरा अरे रहे हैं भाई और तू छोड़, ऐसे हमारे ऐसे वजह कर से रहे तू हैं। सिर्फ ये कर कि कुरान लेके आके इसको बढ़ गया। कंफर्म कर। सुनना भाई सुनना, तो क्यों साले हिंदू गांडू तेरे चैनल पे चल दफा हो साले, दफा हो जा। बढ़ लाइक गया। दिखा दिया। अब उसके बाद जो है ना हिंदू साले, यार हिंदुओं से तुम्हें नफरत क्या है? हिंदू कोई भी हो, तुझे क्या तकलीफ है? यार तो उन लोगों का बाप रे किताब भी बाप। खोल लो ना आप लोग, उन लोगों का किताब क्यों नहीं खोलते? तो अच्छा चलो, जो हिंदू आएगा हमसे डिबेट करने, उसके साथ खोलेंगे, तुम्हारे साथ खोलें? उधर उधर आप लोगों का अंतिम नमाज पढ़ी जा रही है और इधर आप लोग ये कर रहे हो। पढ़ने दो यार, अंतिम नमाज पढ़ने दो। तुम्हारी भी पढ़ी जा रही है, तुम्हारे मोहम्मद वो की भी तो, पढ़ी गई, हाँ वो तो पढ़ी गई है। तो बस फिर बात खत्म हो गई। तुम अपनी मुद्दे पे बात करो। ये मोहम्मद जो है, ये लूट मार में से 20% उसका क्यों है? अरे ये सब जूत का टाइम में ये सब हुआ है, तो ये लोग का कुछ, तुम लोग साला कुछ भी कर रहे हो रे कुरान के साथ। अरे कुरान में लिखा हुआ है लूट मार का माल, चैप्टर का नाम ही है लूट मार का माल, क्या करूं? अरे वो जंग के मैदान पे हुआ ना, उसी का बात ही तो कर रहे हो। लूट मार का माल है ना? लूट मार का क्या, जंग होगा तो होगा ना मारा मारी। लूटेंगे। लूटेंगे, नहीं, जंग होगा तो। जंग होगा तो दुश्मनों को मारोगे तो उसका जो सामान है वो लेने में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? क्यों मारोगे? दुश्मनों के साथ लड़ाई क्यों करोगे? अच्छा सुनो, दुश्मनों के साथ लड़ाई इसलिए करेंगे क्योंकि जब मोहम्मद साहब इस्लाम फैलाने चाहते थे, अच्छा। तो उस टाइम जो दूसरे कंट्री के हुकूमत में थे, तो वो लोग इस्लाम फैलाने नहीं दिया, इसीलिए। अच्छा, अच्छा इस्लाम यानी कि फैलाने नहीं दिया तो यानी कि इस्लाम फैलाने नहीं दिया, लिहाजा उन पे अटैक करो और उनका कत्लो कताल कर दो और फिर उनका माल सुनो, ले लो। एक बात बताओ। पप्पू बच्चियां भी लेके आओ। सुनो हाँ, और पप्पू बच्चियां। ओ साहिल भूल गया था मैं, पप्पू बच्चियां तो। अरे कुछ भी यानी मत कि बोलो, क्या कुछ भी मत बोलो? बच्चियां कहाँ से मिलेंगे तुम? मोहम्मद ने खुद कहा था आओ मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें जो है ना रोमन बच्चियां दूंगा बलौंडी। जो कि बलौंडी होंगी। क्या करूं उनका? दासी का कॉन्सेप्ट तुम लोग नहीं समझोगे, वो सब छोड़ो। किसका? दासी का जो कॉन्सेप्ट है वो लोग तुम लोग नहीं समझोगे। उस टाइम दासी का बात है। कॉन्सेप्ट है ये, दासी का कॉन्सेप्ट है। दासी जो तो कि अपनी अपनी टांगे खोल के आपके ठुल्ले के आगे लेट जाए, वो वाली दासी। अरे छोड़ो तुम लोग नहीं छोड़ो नहीं, छोड़ो क्यों? मोहम्मद ने औरतों से इंसाइट क्यों किया अपने लोगों को? कहाँ किया? कुछ भी मत बको यार। क्या मतलब कुछ भी मत बोलो? जब गजवाए तबूक के लिए मोहम्मद ने लोगों का मेरे साथ तबूक के लिए चलो, तो लोगों को मोहम्मद लोगों ने कहा नहीं बड़ी दूर है, 1200 किलोमीटर दूर है, हम नहीं जाएंगे वहां पे, तो बड़ा मसला है, इतनी दूर है, वजन उठा के निकलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मोहम्मद ने क्या कहा था, आओ मैं तुम्हें वहां पे खास किस्म की बलौंडियां देता हूं जो कि हबशा की कालक और रोम की सफेदी मिला के बहुत ही पप्पू किस्म की हुई हैं और उनके बाल भी पीले रंग के हैं, बलौंडियां हैं। क्या करूं इसका? हाँ, तो उन लोग की शादी कराई गई थी, क्या दिक्कत है उसमें? शादी कहाँ कराई गई थी? चलो ये दिखाते हैं कि शादी कराई गई थी। स्लेव लड़की से सेक्स करने के लिए शादी करना जरूरी है, दिखा दे कुरान हदीस, सारा खुला तेरे पास, जा। और दूसरी बात एडम, एक पॉइंट इसमें और भी ऐड कर देते हैं।
मतलब शादी करने के लिए आप जाके वहां पे जंग कर रहे हो? ये कौन सी शादी है रे भाई? इस्लाम फैलाने के लिए जंग कर रहा था। अच्छा, मैं जो पूछ इस्लाम रहा था, फैलाने सुनो, के लिए जंग। एक सेकंड के लिए मान लो खुदा है, लेकिन उसमें बलौंडी बच्चियों का ताल्लुक क्या है? सुनो, उसमें उसमें बाद में आता हूँ। एक सेकंड के लिए मान लो नहीं खुदा नहीं है। नहीं नहीं, पहले मुझे बता, इस्लाम फैलाना था तुमने, उसके लिए चलो जंग हाँ, भी कर लिया तुमने, चलो मैं थोड़ी देर के लिए जंग कर मान लिया लेता हूँ। तो आदमी लोग मर गया। नहीं तो तो उसके बाद बलौंडी जो उनके बच्चियों और, को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स क्यों करना है, ये बता। अरे भाई, तो उन लोग को ख्याल रखने के लिए स्लेव मतलब तुम लोग क्या नहीं नहीं, एक से सिर्फ ख्याल के यही रखना है, समझते हो? जब उनके साथ आप सेक्स करो। अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, सपोज करो उस जमाने में उस नॉन टाइम, मुस्लिम थे, हाँ। सपोज करो उस हम्म। जमाने में नॉन मुस्लिम थे, हाँ। ठीक है। हाँ। तुम्हारे इलाके पे मोहम्मद की फौज ने अटैक किया, हाँ। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को लौंडी बनाया। मोहम्मद का एक दोस्त आया, उसका नाम था धैया, उसने कहा मोहम्मद एक मुझे तो कोई, लॉन्डी वर्ड मत बोलो, स्लेव बोलो, लॉन्डी ठीक है। वर्ड ही बोलूंगा, आपके स्कॉलर ने लिखा हुआ है, मेरे बाबा जी को ठुल्ले को ठंड है, जब आप लॉन्डी वर्ड की ट्रांसलेशन चेंज करा लेंगे मेरे पास आ जाना कि लॉन्डी ना बोलो। आपके स्कॉलर ने नाम लॉन्डी लिखा हुआ है, मैं लॉन्डी ही बोलूंगा। और तुम लोग स्लेव मतलब सेक्स यही समझते हो मैं कि सेक्स दासियों के स्लेव ही साथ सेक्स बोलूंगा, करो, क्योंकि सेक्स क्योंकि करो। उसकी यही टर्मिनोलॉजी है, अरे भाई, टें टें कम। जिन लोगों का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता तो उन लोग क्या करें, जिन औरत का। सुनोगे, अब सुनोगे, इंटरप्ट ना करना। हाँ, बोलो। धैया आया, धैया ने कहा मुझे एक लॉन्डी चाहिए। मोहम्मद ने कहा जा जाके जौन सी मर्जी ले ले। वो धैया गया और तुम्हारी बहन ले आया। अब वो तुम्हारी बहन को डेढ़ डबड़प ठोक रहे है, सुबह दोपहर शाम। क्यों? ख्याल रख रहा है ना, 3 वक्त का खाना खिला रहा है और 3 बिरयानी वक्त खिला ठोक रहा भी है। रहा है। बिरयानी भी खिला रहा है, मटन कढ़ाई भी खिला रहा है, और छोले भटूरे भी खिला रहा है, और सुबह दोपहर अच्छा, शाम। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे माँ का ख्याल नहीं रखा? अबे मेरी माँ और मेरे बाप की शादी हुआ था, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बाप का शादी हुआ हाँ, था कि नहीं? तो तुझे कैसे पता वो लोग की शादी नहीं हुआ? क्योंकि आपके स्कॉलर्स लिख रहे हैं कि वो शादी के बगैर है। अरे भाई, तुम लोग नहीं समझोगे, ये स्लेव वाइफ, ये लोग अच्छा का इस समझा दो कॉन्सेप्ट। ना, एक स्कॉलर के बच्चे एक रेफरेंस दे दो कि गुलाम औरत के साथ शादी करना जरूरी है। बहुत है हदीसों में, मुझे नहीं पता तो अभी तो नहीं दे अरे सकता, अच्छा वाह, लेकिन साहिल बहुत देखो, सुना है। हदीसों में बहुत है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मुझे दिखाऊंगा। नहीं पता। अरे अच्छा मैं क्या हदीस एकदम रेफरेंस अच्छा, एकदम एक तुम बात लोगों के सुनना लिए। भाई, फरिश्ता बोलो। फरिश्ता बोल रहा है ना? हाँ हाँ, बोलो। फरिश्ता एक बात बता, अपनी बीवी को बेचता है क्या तू? खत्म, टाटा, बाय बाय, निहाता फरिश्ता सुनो, लगा दे, रुको ये तो मीम लगा जरा, दे। रुको तो, सबर तो सुनना करो, फरिश्ता, सबर तो करो। अरे सुन तो सही फरिश्ता, आप हाँ, अपनी बीवी को बेचते हो आप? मेरा शादी नहीं हुआ, बेचेंगे जब। अच्छा, जब शादी करोगे तो बेचोगे थोड़े दिन ठोक ठाक के? तो इसके साथ इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो बताओ। ये मैं बता रहा हूँ, ये लो, ये देखो, क्योंकि गुलाम औरतों को आप बेचते थे, ये लो, ये देखो। उनसे बच्चे पैदा करने के बाद। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे तारीख मम्मी से जब शादी किया तब मोहर मोहर लिया कि नहीं लिया? अबे कंगर के बच्चे, मोहर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मोहम्मद के के वहां से बच्चे, डबल आवाज आ रही है। ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही है डबल आवाज? ओके, वहां पे मोहम्मद फरिश्ता के के पास से फॉलोअर्स आ जो रही है। हैं, वो कुछ अरसे के बाद अपनी लोंडियां बेच देते थे, हम्म। उनको ठोकने ठुकने के बाद। ये देखो, आजाद अपनी कर बीवी को देते, बेचते ऐसा हो क्या बोलो। तुम फरिश्ता? ये देखो, आजाद नहीं स्क्रीन पे करते रेफरेंस थे, देखो। पैसे लेके बेचते थे, गधे। साहिल पढ़ यार। फरिश्ता, ये देखो, तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231 क्या कहती है? इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। हम्म। इनकी हाँ जी, औरतों में से रसूलुल्लाह ने बस बस रेहाना बस बिनते बस, हाँ, साहिल बस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये आजादी है ये ये ख्याल बेच के रखना है। उनकी सुनो सुनो पैसों से घोड़े खरीदे जा रहे हैं? सुनो 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 सुनो, सुनाओ जिन सुनाओ सुनाओ औरत सुनाओ। का जिन औरत का हम्म। कोई पति नहीं है, देखने के लिए कोई हाँ। भाई नहीं है, कोई बाप नहीं है, रास्ते में हम्म। ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो हाँ, उन लोगों को पैसे देकर दासी बनाया गया, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? दूर फिटे मुंह उन लोगों तेरे से पे। अपना ये तेरी अल्लाह सोच है। करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, तेरा अल्लाह करे कि
तेरा देहांत होए और तेरी माँ और तेरी बहन दासी बन जाए, ये वाली दासी वर्ड तो यूज ही नहीं करना है, दासी साहिल, नहीं वर्ड का मतलब ही ये अलग वाली है, दासी, लॉन्डी वर्ड यूज आई करो। नो आई नो, ये वाली दासी, स्लेव इसकी वाली दासी, स्लेव स्लेव इसकी वाली स्लेव दासी, स्लेव इसकी वाली हाँ, दासी स्लेव बने, वो दूसरी वाली नहीं, इसकी वाली दासी बने, और जिसकी दासी बने वो उसको जब सुबह दोपहर आर्गुमेंट नहीं शाम। है तो पर्सनल अटैक में आ जाते हो ना। अबे आर्गुमेंट नहीं गधे है के तो बच्चे, पर्सनल अटैक इसलिए नहीं कर रहा ताकि तुझे पर्सनल पता क्या है? लगे देखो कि ये देखो तूने चिल्ला, इस चीज को यही ओके है किया ना, तुम्हारा टैक्टिक्स यही है। तुम ओए देखो तूने इस साहिल चीज कितना, को ओके किया ना। हाँ, अरे मैं तो इसलिए उस कंडीशन के साथ तुम आज की कंडीशन क्यों मिला था? क्यों, कहाँ पे खत्म हुई है ये कंडीशन, एब्रोगेट कब हुई है अ- कंडीशन? अभी स्लेव का कॉन्सेप्ट है, ये बताओ मुझे। स्लेव का कॉन्सेप्ट अभी है, इस्लाम के अंदर अभी भी है। कहाँ है दिखाओ। इस्लाम के अंदर कब खत्म हुआ है, कहाँ पे लिखा है स्लेव खत्म करो? लिखा है कि नहीं लिखा है कि उस समय के एक प्रथा थे, उस समय तो कोई कहाँ ऐसे लिखा है मुर्तद कि ये लोग, उस समय के लिए था? उस समय तो मुर्तद ऐसा कोई सवाल नहीं उठाते। उठाते थे, मोहम्मद ने मार दिया, कत्ल कर दिया उन घंटा सबको। घंटा उठाया था। हाँ उन्होंने उठाया था, मोहम्मद ने कत्ल सुनो कर दिया ना सुनो उनको। सुनो, मोहम्मद एक से सेकंड, पहले नहीं नहीं, अबे साले फरिश्ते, पहले एक बात से आगे नहीं भागना। जिसने सवाल उठाया उसको मोहम्मद ने कत्ल किया, हाँ या ना, ये बता पहले। सबको नहीं, जो जंग के मैदान के छोड़ के। किस, नहीं जंग के मैदान की बात ही नहीं कर रहा, जंग के मैदान की बात ही नहीं कर रहा। हर उस मुर्तिद ने जिसने मोहम्मद पे इस किस्म की हरकतों के ऊपर सवाल उठाया, क्या मोहम्मद ने उनको कत्ल करवाया तुम कि लोगों नहीं? को सिर्फ यही एक दो कत्ल करने पे ही इसमें आ जाते हो जंग के मैदान के। एक अरे आदमी, डंगर एक डंगर, सुनो जंग के सुनो मैदान की सुनो बात सुनो ही नहीं कर सुनो, रहा, जंग के मैदान की बात ही एक नहीं कर रहा, जंग के एक मैदान की आद, बात नहीं कर रहा। एक आदमी आके मस्जिद में आके पेशाब करते हैं अबे तो मोहम्मद साहब डंगर, उन लोग जंग के मैदान की बात ही नहीं कर रहा। फरिश्ते, ओए फरिश्ते के मुंह के ऊपर लानत हो, तेरा नाम फरिश्ता बना हुआ है। ओए डंगर, पर्सनल पर्सनल काब बिन अल अशरफ पर्सनल को, काब बिन अल अशरफ को क्यों मरवाया? उस समय का हुकूमत को सही समझा तो मर दिया, क्या दिक्कत है? आज की हुकूमत फांसी नहीं देती है लोगों को। ओके, तो लिहाजा मोहम्मद के खिलाफ जिसने आवाज उठाया उसको मोहम्मद ने कत्ल कर दिया, तो ये तुम्हारा मुद्दा तो खत्म हो गया। किसकी बात ये कर रहे देखो हो? जरा लिखा क्या समझ है, नहीं। हदीस क्या लिखी हुई है, सुनो सुनो जरा, हदीस क्या लिखी हुई है। देखो कितनी मजेदार हदीस है। तुमने कहा ना कि मोहम्मद के उस समय में किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाया, आवाजें उठाया, मोहम्मद कत्ल करता गया। प्रॉफिट सेड, हु इज रेडी टू किल काब बिन अल अशरफ, कौन है जो काब बिन अल अशरफ को मारेगा? क्यों मारेगा, जरा सुनना। हु हैज रियली हर्टेड अल्लाह, अल्लाह को कौन हर्ट कर सकता है, कौन हर्ट कर सकता है? मुर्तद मुर्तद। एग्जैक्टली, मतलब अल्लाह हर्ट एंड इज होता है? अपोस्टल। हाँ ना, होता है साहिल, अल्लाह हर्ट होता है, अरे ये और इसका क्वेश्चन अल्लाह पूछ बहुत, रहा है, आगे बढ़ो। अल्लाह बहुत हर्ट होता है साहिल। अरे ये बुरा, क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे बढ़ो। साहिल बहुत प्यारा प्यारा है। अच्छा, मोहम्मद बिन मुसैलमा said, ओ अल्लाह मैसेंजर, डू यू लाइक मी टू किल हिम, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे कत्ल कर दूं? ही रिप्लाइड यस, जा कत्ल कर उसको, खोती के बच्चे को, उसने बड़ा हर्ट किया मेरी फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं, फीलिंग्स। सो मोहम्मद बिन मुसैलमा वेंट टू किल हिम, वो फिर उसके पास गया और उसके साथ उसने गप्पे लगाना शुरू कर दी, और जब उसे मौका मिला उसने उसे कत्ल कर दिया। गप्पे लगाई, दोस्ती मारी, और जैसे ही मौका मिला उसको कत्ल कर दिया, फीलिंग्स के ऊपर। अब मुझे बता, फीलिंग्स के ऊपर कैसे कत्ल किया? मोहम्मद ने कत्ल किया। कि यार ये तेरा दिमाग तो चलता है किसने किया, फरिश्ता? एक सेकंड, किसने किया, किसने किया, अभी सुनो, किसने किया अभी है? सुनो नहीं, किसने किया है? कहाँ लिखा है? मोहम्मद ने नहीं किया तो कौन किसने किया है? कौन से वेबसाइट से लाए, देखते हैं पहले। सही बुखारी की हदीस है, किसने किया है? 3031, एक सेकंड रुको। अबे छोड़, किसने किया ये बता। अबे पर्सनल अटैक पे मत जा, रुक जा, मैंने क्या सबर कत्ल, तो किसने किया? करो। पर्सनल अटैक की बात है, किसने किया कत्ल? जो मोहम्मद के पास गए थे। खोती का बच्चा है तू। उसने जोश जर्नल में कभी, आके कत्ल जर्नल कभी कर कत्ल दिया। करता है? नहीं।
जनरल कत्ल नहीं करता, जनरल कत्ल का ऑर्डर वही देता तो है। बोला, हुकूमत में कोई अगर गुनाह करेगा तो उसको क्या सजाए गुनाह मौत क्या देने है? के अब गुनाह फीलिंग क्या है? है कि नहीं है? फीलिंग हर्ट करने पे कौन कत्ल करता भाई? कौन सी हुकूमत सिर्फ की और बात सिर्फ कर रहा है तू? सिर्फ और सिर्फ हदीस की एक आयत देके सिर्फ और सिर्फ फीलिंग हार्ट के बारे में ही कुछ और भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो तू बता ना फिर क्यों किया? क्योंकि जरूर होगा इसका कोई आंसर। रुको होगा अभी चेक नहीं, कर रहा हूँ। दिखाना है लाके। रुक जा चेक कर रहा हूँ। चल म्यूट करके बैठ, तू ढूंढ इतनी देर में, सर किसी और को लें। अच्छा सुन इन द सुन मीन सुन टाइम सुन 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 सुनो सुन सुनो नहीं, सुनो। हेलो कोई सुनो नहीं, तू जाके किताब पढ़ने लगा था, जाके किताब पढ़, ढूंढ के ला, फिर बात करेंगे। अब मैं सुनूंगा नहीं तेरी, अब तू पढ़ के लेके आएगा। चुप करके बैठ रहा है यहाँ पे म्यूट करके, जब रेफरेंस आ जाएगा बात करें। ठीक है साहिल साहब पढ़ किसी रहा और हूँ। को लें, म्यूट कर अपने आप को, लेते। म्यूट कर। बेशक, बेहतरीन, आगे चलने सर, खत्म, रेफरेंस लाने दे इसको। अफगानिस्तान। हाँ भाई, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अरे अफगानिस्तान। केम शो सदर कॉल, मेरा आवाज आ रही है? सर मोमिन है आप? ना, मैं सर नहीं क्यों हूं। जुड़ के टाइम वेस्ट कर रहे हो? थर्सडे को जुड़िए आप, फटाफट स्ट्रीम छोड़ दीजिए आप। सर सैयद अशरफ को लें, काफी देर से बैठा हुआ है। सैयद अशरफ। सैयद अशरफ। हेलो। जी भाई। हेलो। हाँ भाई। कैसे हैं भाई साहब आप लोग? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। हुज्जतुल आप मोमिन हैं मुत्तकीन। सर? सर मोमिन हैं आप? आप पहचानते हैं मुझे? मोमिन अच्छा, है। आप पुराने वाले डंगर हैं। अब डंगर तो ना बोल रहे हैं, डंगर तो आप लोग भी है ना भाई साहब। नहीं नहीं, हम डंगर नहीं, आप डंगर है। चलो सैयद अशरफ, फटाफट आज के टॉपिक पे रसूलुल्लाह ने क्या क्या टेक्नोलॉजी दुनिया को, वो जरा गिनाना शुरू करें। भाई आप लोग अभी टॉपिक बता रहे थे कि गुलामों को आजाद कर किए सर थे वो सब छोड़ और दो, हुज्जतुल मुत्तकीन वो को सब किस वो तरह बाद में मारा बात जाए, करेंगे। क्या पहले किया जाए। सैयद ठीक है। अशरफ, सैयद अशरफ भाई, अभी आप पहले टेक्नोलॉजी रसूलुल्लाह ने क्या क्या दी है जरा फटाफट गिनती कराएं। हाँ तो बताइए, टेक्नोलॉजी क्या मैंने बताता है कि इंसान का क्या क्या फायदा पहुंचाया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या दिए? जैसे अभी आप साहिल यूट्यूब पे आए हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पहले नहीं समझाना पड़ेगा क्या अभी मतलब? आप बताइए, साहिल सीरियसली यार, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट समझाना पड़ेगा। इंसान का सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत क्या क्या है? दुनिया में सबसे क्या ज्यादा जरूरत जरूरत है? का चीज क्या है? क्या है? इस्लाम के मुताबिक बताइए। लड़की के टांगों के बीच में जो सुराख है वो इस्लाम के मुताबिक यही है। हाँ, आप पकड़ लीजिए, आपको एक लड़की के टांगों के बीच में रख दिया गया, ठीक है। अब नहीं आप रख दिया जिंदगी गया, भर नहीं उधर ही हमें पड़े नहीं रख रहेंगे दिया और गया। कुछ नहीं कर। इस्लाम अब के कुछ जरूरत नहीं है मुताबिक ना। नहीं भाई, इस्लाम के अरे मुताबिक इस्लाम को छोड़िए ना, आप टेक्नोलॉजी पे बात करिए ना। नहीं, मैं वही अगर बता रहा हूँ, इस्लाम पे आपने बात सवाल, करिएगा तो फिर आपने हुज्जतुल सर मुत्तकीन सुन तो का लिया करें ना सर, सवाल तो सही था ना सुन मेरा। तो लिया करें, सर सुन तो लिया करें। आपने कहा है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यही आपका सवाल है। मैंने बताया है इस्लाम के मुताबिक दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज औरत की दो टांगों के बीच का सुराख है। टेक्नोलॉजी में बात आप मुझे करिए, कहें अगर कि मैं गलत टेक्नोलॉजी में कर रहा हूं, बात करना है। ओके सर, टेक्नोलॉजी की कोई बात ही नहीं की इस्लाम ने, अगर की है तो बता दें सीधा सीधा। अगर इस्लाम में बात करना है तो इस्लाम में बात करेंगे, अगर टेक्नोलॉजी में बात स्टार्ट हुआ है तो टेक्नोलॉजी में ही बात करिए, तो ठीक है। बताना जी भाई, शुरू इस्लाम तो में उसी जाके से किए गलत थे गलत ना हम बोलने का लोग। सैयद अशरफ, शुरू अभी जो इस्लाम में पहला क्यों घुस सवाल रहे? आपसे यही किया था ना। हाँ तो मैं तो वही चलो बोल रहा गिनाओ। हूँ कि इनको तो यही एग्जाम्पल दिया ना, जैसे कि इनको अरे टांगों के मेरे बीच अगर रख भाई दिया जाए, फिर सैयद इनका अशरफ, कुछ जरूरत नहीं है। सैयद अशरफ, अरे अभी सवाल फिर से रिक्वेस्ट समझ करता नहीं हूँ। रहे भाई आप बात में। रसूलुल्लाह ने कोई टेक्नोलॉजी दी है, हाँ या नहीं?
बहुत सारा टेक्नोलॉजी दिया है भाई साहब। थैंक यू सो मच। देखो एडम, मैंने बोला था ना, आप जबरदस्ती खामखा कह रहे थे कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिया है। मैं बोला था मोमिन कुछ ना कुछ उठा के लेके आएगा। चलिए शुरू करें, क्या क्या टेक्नोलॉजी दी है रसूलुल्लाह ने। जी सैयद अशरफ साहब, पहली टेक्नोलॉजी। हाँ, तो क्या क्या टेक्नोलॉजी दिया है आपको? टेक्नोलॉजी का मैंने लिस्ट चाहिए पूरा। हाँ लिस्ट लिस्ट, पहला पहला बताओ क्या टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या दी है। सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी दिए है कि इंसान पहले साफ सुथरा रहना नहीं जानता था, तो उनको साफ ये सुथरा रहने टेक्नोलॉजी के है। पूरे तरीका बताए हैं। अरे तरीका बताना ही तो टेक्नोलॉजी हुआ ना भाई साहब। यार साहिल, अब ये हंस रहे हैं क्या? साहिल ओ भाई पत्थर मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई मेरे को मेरा सर नहीं, इसका सर फोड़ना है। मजाक है भाई। अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी देख लिए हो दो चार, सैयद तो अशरफ, अभी सोच रहे सैयद हो कि अब अशरफ, इस्लाम का सैयद सवाल अशरफ, उठाए। सैयद अशरफ, जब ये तुम वही हो ना जिसने आके कहा था कि इस्लाम ने हमें सुसु करने के बाद सफाई करने का तरीका बताया। ये अलग है। अच्छा, तो यार मुझे सैयद ये अशरफ, बताओ तुम अच्छा नहीं नहीं, क्या मैं खाली मैं पूछता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी पूछता हूँ, छोड़ो टेक्नोलॉजी रुको। का मतलब मोबाइल अरे समझते हो यार खाली? अरे यार सुनो यार, टेक्नोलॉजी की भाड़ में गोली मारो टेक्नोलॉजी को, वो चले गई भाड़ में, टेंशन न ले। मुझे सिंपल सी एक बात बता। एक सेकंड साहिल, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं ओके ठीक है। तो हाँ, भाई लोग आप सोचो कि टेक्नोलॉजी रसूलुल्लाह ने ये दी है कि लोगों को पहले साफ सुथरा रहने नहीं आता था, तो साफ सुथरा रहने के लिए सिखाया। तो ये टेक्नोलॉजी मतलब क्या जेट स्प्रे निकाला था क्या रसूलुल्लाह ने गांड धोने के लिए। हाँ जी सॉरी साहिल साहब, मैं किधर था, सॉरी मुझे कॉल आ गई थी वो लेने नहीं गई थी। ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो मैं हाँ, साफ सुथरे पहले नहीं और आता छोड़े था तो मैंने टेक्नोलॉजी उनको गोली मारे, पूछा। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी गोली मारे। साहिल साहब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो साफ सुथरा रहने का इन्होंने बताया, वो नबी ने क्या तरीका बताया था, वजू का तरीका, साफ सुथरा रहने का तरीका। हाँ बिल्कुल। 5 वक्त बेहतरीन, नमाज में साफ सुथरा बिल्कुल, बस बस आगे नहीं चलना। आदमी उसके बाद जनाब अस्तंजा अगर करने का तरीका बीमारी तो बताया वहीं आपके नबी दूर ने। हो जाती। हाँ अस्तंजा करने का तरीका बताया आपके नबी ने। भाई, वजू जो करते हैं 5 वक्त, हाँ तो हाँ, उसमें उसके तो अलावा अस्तंजा करना बताया ना। आधा आधा टेक्नोलॉजी वहीं पे आ रहा है ना, आपको अच्छा मेडिसिन यार ज्यादा खाना नहीं टेक्नोलॉजी को पड़ता है। छोड़ दे यार, वो साइंस की चीजें तेरे ऊपर से गुजर जाएगी, छोड़। अच्छा जब अभी आपने पोटी अब की है, जब आपने टटी की है और पानी नहीं है, तो तो क्या करना है इस्लाम के मुताबिक। मेरा सवाल का तो थोड़ा जवाब दे दो भाई। मैं तो एक सवाल का जवाब दिया, अब तुम पूरा सवाल करोगे तो फिर फायदा क्या मेरा आने का इधर? भाईजान वही तो हम मेरा टेक्निकली सवाल समझने का की कोशिश जवाब दे कर रहे दो हैं। थोड़ा, फिर तो। हाँ, तो मेरा किधर सवाल है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है दुनिया में? अभी तुम ओके, बोले कि टांगों के बीच, तो हम मैं बोल रहा हूँ कि टांगों के बीच अगर रख दिया जाए तो और कुछ जरूरत नहीं है तुमको, मैंने टांगों के बीच ही रह जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है ना? यही ओके, कहने का मतलब है। वापस वापस आते हैं। सर जी देखें, मैंने ये नहीं कहा था कि हमारे मुताबिक, मैंने कहा था इस्लाम के मुताबिक, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अरे मैं अभी आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर जी, टेक्नोलॉजी अस्तंजा करने का टेक्नोलॉजी तरीका आपके। सर रुक जाएं, रिलैक्स। देखें ऐसे नहीं चलेंगे हम समझेंगे जो टेक्नोलॉजी आपके नबी ने बताई है वो क्या बताई है। अगर पानी ना हो और आपने टटी की है, तो आप नबी इस्लाम का के छोड़िए मुताबिक कैसे भाई, सफाई करेंगे। नबी का बोलने में औकात नहीं है। आप टेक्नोलॉजी में बात करिए, ठीक है? जी जी, मैं टेक्नोलॉजी वही अभी कंप्लीट हो टेक्नोलॉजी की, चुकी। हाँ, अशरफ, मैं टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी आपने तो बताई सफाई मैं जो सुथराई। सवाल किया उसका जवाब तो दीजिए। यार खोती का बच्चा सुनेगा नहीं। बैक स्टेज सुनो पहले सवाल। आपने कहा आपकी साइंस इस्लाम ने टेक्नोलॉजी जो दी है वो सफाई सुथराई दी है, परफेक्ट। मैंने आपसे सवाल किया है, आपने पोटी की है, तो आपके नबी ने पोटी को साफ करने का क्या तरीका बताया है, अगर आपके पास पानी ना हो। हम सब सुनना चाहते हैं जी।
تو ابھی وضو کا بتایا نا کہ آدمی 5 وقت وضو کرتا ہے. ابھی پوٹی کا اوکے بعد میں بات کریں اگر گے نا. پانی نہ ہو تو وضو کیسے کرنا؟ پوٹی کا بعد میں بات کریں گے نا. ابھی اوکے میں بعد بول میں رہا ہوں کریں گے. کہ اگر وضو پانی نہ ہو تو وضو کیسے کرنا ہے؟ ارے ایک تو جواب دیا نا بھائی, تو میرا جواب نہیں دو گے تم؟ ارے بھائی وضو کو سمجھ رہا ہوں نا, پانی نہ ہو تو وضو کیسے کریں گے؟ ہاں تو وضو کا بات ہو گیا, اب جو پانی نہ ہو وہ والا بعد میں بولیں گے. جائیں جاؤ پاگل کا بچہ.